Okay, so जल्दी कीजिए। welcome to all. Today we gather here to celebrate and honor a fundamental principle for our society, and equality and love in all its form. It's my privilege to address you on the topic of sex marriage, a topic that represents progress, acceptance, and the celebrations of diversity. By embracing the same-sex marriage, we are taking a significant step toward creating a more inclusive and compassionate society. I welcome Shweta Sabzi from Amenity University, Dubai, who is the host of this session, and I also welcome Ms. Ankita, who is the speaker of this session. I hand over the session to Ms. Shweta. Thank you so much, Himanshi ma'am. So, good evening, everyone, and welcome to today's session on a topic that holds significant importance in our society. So, same-sex marriage. So, I'm Shweta Sabuji from Amity University, Dubai. I'm honored to be your host in this event. And I believe that open and respectful discussion is very important and very essential for promoting and understanding the inclusivity. So, same sex marriage is a subject that has been in the forefront of social, legal, cultural debates in the recent years. And it's challenged to examine our beliefs, values, notions, and equality of and human rights. So today we have gathered here to delve and deeper into this topic and explore more different perspectives and foster the meaningful conversations that have contributed to a more inclusive and accepting. So I would like to call the speaker of this webinar, Ms. Ankita ma'am. So she is a budded advocate and she has done an LLM in constitutional and administrative law. And currently she is engaged in litigation as a junior advocate in District and Sessions Court, Nagar. And she is dealing with contracts, NIA, accident claims, business disputes, and criminal matters. So she also drafts RTIs and petitions in this high courts. So this session, actually, the KAMRA Associates and HIMANSHI CHHILLAR are the founder of this webinar. Advocate Lakan KAMRA is the honorable member of this High Court and working with District Court, and KARNAL is also working with Lakan KAMRA Sir as associate. So now I would like to invite all of you, all the participants actively into this session, and please feel free to raise your hands or use the designated chat features to ask questions and share your thoughts. So thank you once again for your presence and valuable contributions. I hope this session has provided you with new perspectives and insights. And let us strive to create a world where there is love, respect, and equality, which is transcended all the boundaries. Over to you, ma'am. I handle this session to Ankita ma'am. Hello everyone, this is Advocate Ankita Chauhan, and Hello, today ma'am. we will discuss about same-sex marriage. Basically, the topic of this webinar is same-sex marriage, a human right or cultural issue. Basically, uh, we discuss about this topic in a debatable form. Okay, so I will share my screen and just a minute. श्वेता मैम, ये जो अभी एक्चुअली वीडियो लाइव जो है ना, वो चल नहीं रहा यूट्यूब वाला लाइव, तो वीडियो यूट्यूब लाइव इज नॉट रनिंग प्रॉपरली. सो इफ देयर इज एनी video recording by this, so please record this screening. Do you have any Yes, option? If I'll send you a request. Can you please? Yes. Yes. Hope the screen is visible to everyone. Yeah, ma'am. Screen is visible. Okay. Okay. So, we start the session, and again, जैसे कि मैंने कहा, टॉपिक है सेम सेक्स मैरिज, ह्यूमन राइट और कल्चरल इशू. इस पूरे सेशन के अंदर, इस पूरे वेबिनार के अंदर हम बात करने वाले हैं सेम सेक्स मैरिज इंडिया के अंदर एक ह्यूमन राइट है या एक कल्चरल इशू है. बेसिकली इन दोनों टॉपिक के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट में आजकल बहस चल रही है. तो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, जहाँ पे 52 पिटिशंस लगे हुए हैं और मोर देन 20 केसेस फाइल हुए हैं सेम सेक्स मैरिज को एक रिकॉग्नाइज्ड मैरिज और लीगलीहुड और पेरेंटहुड का परमिशन देने के लिए, उन पर्टिकुलर सारी चीजों को आज हम इस वेबिनार के अंदर कवर अप करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली टॉपिक है सेम सेक्स मैरिज. आई होप आप टॉपिक समझ गए हैं. सेम सेक्स मैरिज, ह्यूमन राइट और कल्चरल. मैम वॉइस में इशू आ रहा है, वॉइस में इशू आ रहा है, थोड़ी बहुत क्रैक हो रही है वॉइस, और थोड़ा सा स्लो बोलें, फास्ट नहीं बोलना है प्लीज. हेलो,
Am I audible now? यू आर ऑडिबल, बट वॉइस बीच में ना थोड़ी बहुत जैसे क्रैकिंग टाइप सी होती है, लाइक, तो थोड़ा बहुत स्मूथली, थोड़ा राम राम से बोलिए तो समझ आ जाए, ताकि, है ना। Okay, oh, okay, fine. मोस्टली So, मोस्टली topic जोर I hope. मोस्टली जोर इंग्लिश पे रखो, कोई इशू वाली बात नहीं है, और थोड़ा बहुत हिंदी भी चलेगा, कोई नहीं, ज्यादा जोर इंग्लिश पे रख लो। Okay, so the topic is, I hope, topic clear है सबको, same sex marriage, human right और cultural issue, right? So सबसे पहले हम बात करने वाले हैं then what is the same sex marriage? So marriage between people who have same legal sex. It is a same-sex marriage. Till 2023, this same-sex marriage got recognition in 34 countries such as France, Germany, and Colombia. Basically, this type of marriage is a serious issue in LGBTQIA plus community. Basically, this community deals with the various gender terms like lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual, but basically lesbians, gays, and bisexual peoples are more serious about or more effective about the same-sex marriage because lesbian, gay और bisexual ही ऐसे people हैं इस country के अंदर जो कि same-sex marriage को लेकर बहुत ज़्यादा serious हैं और वही चाहते हैं कि same-sex marriage को validity जल्द से जल्द इस country के अंदर मिल जाए। बेसिकली अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेम सेक्स मैरिज, एंड इफ यू टॉक अबाउट यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज, तो सेम सेक्स मैरिज कोई भी परमानेंट मैरिज नहीं था, लाइक कोई भी एक परमानेंट स्टेटस इस मैरिज को नहीं मिला हुआ था। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कैन बी अ परमानेंट बैचलर मैरिज, बूस्टर मैरिज, और इस तरह के मैरिजेस बेसिकली पॉपुलर थी इंडिजिनस ट्रेडिशंस में, और इंडिजिनस ट्रेडिशंस बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ज्यादा पॉपुलर थे, यूएसए में ज्यादा पॉपुलर थे, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में, या फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां भी ट्राइबल सोसाइटी के अंदर या शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर, अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो श्रीलंका के अंदर, कोलंबिया, इस तरह की कंट्रीज में इस तरह के मैरिजेस का स्कोप लगातार बढ़ रहा था। If you talk about Indian history, so in Vedic period and a medieval period, इस तरह की मैरिजेस का रेफरेंसेस बार बार हमारे वेदास में, पुराण में आता है, जहाँ पे ऋग्वेद या फिर गंधर्व पुराण कई बार इस तरह की मैरिजेस को रिकॉग्नाइजेशन देते हैं। बट कोई भी कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, किसी भी तरह का रूल ऑफ लॉ, किसी भी तरह का लीगल वैलिडिटी इंडियन मोनार्की के टाइम पे इस तरह की मैरिजेस को नहीं मिली थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इंडियन लीगल सिस्टम ने इस तरह के मैरिजेस को रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी। ऑन द अनदर हैंड वो सभी कंट्रीज की हमारे ही टाइम पे, मतलब इंडियन मोनार्की के टाइम पे जिन कंट्रीज के अंदर ये मैरिजेस काम कर रही थी, ये मैरिजेस सोसाइटी के अंदर रन कर रही थी, उनको रिकॉग्नाइजेशन यूएसए जैसी कंट्रीज ने दी, एंड कोलंबिया ने दी, फ्रांस ने दी, जर्मनी ने दी, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने दी। बेसिकली हम सबका आज एक बहुत ही डिबेटेबल डाउट होगा या फिर एक बहुत ही जेन्युइन डाउट होगा कि इंडिया में अभी तक ये मैरिज क्यों रिकॉग्नाइज नहीं हुई है और बाहर की कंट्रीज को इतनी जल्दी रिकॉग्नाइजेशन क्यों मिला, लाइक what was the reason, what was the basic reasons? So basically पहला रीजन तो ये आता है कि अपना कंट्री ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, अपनी कंट्री के अंदर फेडरलिज्म है, अपनी कंट्री सेपरेशन ऑफ पावर बिलीव रखता है, अपनी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन का स्कोप ज्यादा है। और अगर हम बात करें दूसरी कंट्रीज की, लाइक हम बात करते हैं ब्रिटेन की, फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की, सभी कंट्रीज जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, टेरिटोरियल बहुत कम है, डाइवर्सिटी नहीं है, एक रिलीजन के लोग रहते हैं, उस टाइप की कंट्रीज के अंदर एक पर्टिकुलर मैरिज को रिकॉग्नाइजेशन देना बहुत आसान था। वहाँ का सोशल फैब्रिक, वहाँ का सोशल ट्रेडिशन डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। लेकिन इंडिया जहाँ पे बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत तरह की डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, वहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइजेशन देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हम बात कर रहे हैं इंडिया की, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक फेडरल कंट्री है, एक सेपरेशन ऑफ पावर में बिलीव रखने वाली कंट्री है। कभी कभी इस कंट्री के अंदर इस तरह के इश्यूज को लेकर डेड लॉस भी क्रिएट हो जाते हैं, वो आज के पर्सपेक्टिव में हम देख ही रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जुडिशरी की या फिर लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज की, पार्लियामेंट्स की, तो आई होप आप सभी समझ रहे होंगे कि इंडिया लाइक
जुडिशरी इज मोर सीरियस अबाउट रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज, है ना। आप बार बार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप नवंबर से लेकर अभी तक का आपने पूरा प्रोसीडिंग देखा है अगर सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी अदर हाई कोर्ट्स का या किसी भी कोर्ट का जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज के ऊपर डिस्कशन हुआ है, तो आप पाए होंगे कि जुडिशरी इज मोर सीरियस अबाउट रिकॉग्नाइज अ सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया। बट पार्लियामेंट की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें, लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो वो सारे अथॉरिटीज सेम सेक्स मैरिज को लेकर इतना ज्यादा इश्यूज, मतलब उनके इश्यूज हैं। वो चाह रहे हैं कि लाइक सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब होगा, वोट बैंक डिस्टर्ब हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं पिछले महीने की, जब राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला कि अगर सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेशन दे देगी तो ये एक इंडिया के सोशल फैब्रिक के अगेंस्ट चला जाएगा। सो यस, बिल्कुल इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फेडरलिज्म भी है, सेपरेशन ऑफ पावर है, बट इस तरह की चीजें, इस तरह के इश्यूज कंट्री के अंदर ही गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन्स में डेडलॉक्स क्रिएट कर देते हैं, और वो डेडलॉक्स उस तरह के लोग जिनको वो राइट्स चाहिए, तब उनके फंडामेंटल राइट और उनके ह्यूमन राइट अफेक्ट होते हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो एक तरफ सेम टॉपिक है, सेम सेक्स मैरिज, और हम बात कर रहे हैं कि ये ह्यूमन राइट है, लाइक इसको एज अ ह्यूमन राइट ट्रीट किया जाए या फिर इसको एज अ कल्चरल इशू ट्रीट किया जाए। तो हम दोनों ही एस्पेक्ट पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील अबाउट द सेम सेक्स मैरिज एज अ ह्यूमन राइट, जो कि दूसरी बाकी कंट्रीज में भी ऐसा है। फिर हम बात करने वाले हैं कि सेम सेक्स मैरिज एज अ कल्चरल इशू, कि अगर सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज हो जाए तो देन क्या इशू होगा, या फिर अभी अगर हम सेम सेक्स मैरिज को सोसाइटी रिकॉग्नाइज कर दे तो तब क्या इशू है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक, इस टॉपिक का बेस क्लियर है आई थिंक। ओके, आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। आगे है, बहुत सारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हमारे पास हैं। अपनी कंट्री के अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत अच्छे से काम करता है। अपनी कंट्री रियलिस्टिक ऑफ जुरिस्प्रूडेंस में बिलीव रखती है, व्हिच मींस जो जुडिशरी के जो रूल्स रेगुलेशन, जो जुडिशरी जजमेंट दे रही है, उनका भी उनका जो स्टेटस वो भी एक लॉ के जैसे ही होगा। सो अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल जुडिशियल प्रेसिडेंट की, तो वो स्टार्ट हुआ 2014 से, जब केस आया नेशनल सर्विस अथॉरिटी नालसार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, जिसके अंदर रिकॉग्नाइजेशन दी गई थर्ड जेंडर को। ओके, सेकंड केस आया जस्टिस केस स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का, जो अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल, अपने आप में बड़ा फेमस केस रहा। उसमें राइट टू प्राइवेसी पे फंडामेंटल राइट बोल दिया गया। मैं ये केसेस अभी यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे जाके जब हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं तो ये सभी केसेस वहां पे हम गो थ्रू करेंगे एक बार, वो उनका एसेंस देखेंगे कि वाई ये सारा जुडिशियल प्रेसिडेंट, ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो 2014 से उससे पहले से ले एक सेम सेक्स मैरिज की तरफ जा रहा था, वो माहौल, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा था कंट्री के अंदर कि यस देयर इज अ टाइम टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया, और वो सारी चीजें हो रही थी। तो ये उसका बेस है बेसिकली। तो पहला जो केस है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जहाँ पे हमने बात की जेंडर को रिकॉग्नाइजेशन देने की। उसके बाद है जस्टिस केएस कुट्टूस्वामी का केस, जहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। दो लोग, चाहे वो सेम जेंडर के हैं नहीं, एक रूम में बैठ क्या कर रहे हैं, इससे स्टेट को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं आई वुड लाइक टू कोट अ पर्टिकुलर लीगल थिंकर, उनका नाम है तमन्ना, लीगल थिंकर तमन्ना, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के ऊपर भी बहुत सारी अच्छी चीज लिखी। उन्होंने लिबर्टी जैसे कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि देयर इज अ टाइप ऑफ लिबर्टी, इज अ पर्सनल लिबर्टी, की लाइक स्टेट डज नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर, कि दो पीपल एक वॉल, 4 वॉल के अंदर क्या कर रहे हैं, इसको स्टेट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और यही चीज एक पर्सनल लिबर्टी में आती है, जो कि आर्टिकल 21 रिकॉग्नाइज करता है अपनी कंट्री के अंदर। सो यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज किया गया, आर्टिकल 21 का लंबा एक्सटेंशन वे में लिया गया, और जुडिशियल प्रेसिडेंट ये एक इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट रहा। यहाँ से भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट होने लगा कि यस, जब थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं, जो कि ट्रांसजेंडर हैं, जो आप राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बना रहे हैं। उसके बाद तीसरा केस हमारे पास आया नवतेज सिंह जौहर वर्सेस इंडियन ऑफ इंडिया का, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जिन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को एक लीगलाइजेशन प्रोवाइड कर दी, है ना। इस तरह की चीजें थी। उसके बाद अगर हम बात करें आगे सेम सेक्स मैरिज, जो कि अपने आप में ही डिबेटेबल टॉपिक है,
इसको हम दो पार्ट में बात कर रहे हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट इसका एज अ ह्यूमन राइट, इसको आज हम बात करने वाले हैं, और दूसरा एक कल्चरल इशू की अगर सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज हो जाएगा, अगर हम इसको आज इंडिया के अंदर एप्लीकेबल कर दें, या फिर जो जो दूसरा पार्टी है गवर्नमेंट का, जो रिस्पोंडेंट है, उनका क्या व्यू है, वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों ऐसे कौन कौन से उनके कंटेंशंस हैं यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज कल्चरल इशू इन इंडिया और ये लीगलाइज नहीं होना चाहिए। सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी वो केस कौन सा है अभी इस कंट्री के अंदर जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सेम सेक्स मैरिज को लेकर। कोई उसका नाम बता पाएगा? एनीवन, कोई भी पर्सन जो कि बता पाए कि ऐसा कौन सा केस है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, इसके अंदर ये दो चीजें डिस्कस हो रही है कि लाइक या तो ह्यूमन राइट को ट्रीट करे, और ह्यूमन राइट कर रहे हो तो राइट टू लिवलीहुड, राइट टू पेरेंटहुड और राइट टू मैरी, ये सारे राइट्स दे दो एलजीबीटी कम्युनिटी को, या फिर कल्चरल इशू ट्रीट करो। उस केस का नाम जानना चाह रही हूँ, किसी भी पर्सन को पता हो तो बता सकता है। मैम एक्चुअली केस का नाम तो प्रॉपर याद नहीं है। वैसे एक आजकल ना बहुत मतलब फेमस ट्रोल हो रहा है, लाइक फेसबुक के ऊपर भी देखे हम अगर, या कहीं भी देखे हम, तो दो लड़कियां हैं जो काफी यस, ज्यादा फेमस हो रही हैं यही सेम सेक्स मैरिज में। दोनों लड़कियों ने हाल ही में शादी की है रिसेंटली अभी। एक एक लड़की का जो फेस है बिल्कुल लड़के जैसा लगता है। उस केस का नाम नहीं पता, लेकिन क्या है वो केस जरूर चल रहा है, मुझे इतना पता है जहाँ तक कि। ओके ओके। सो केस का प्रॉपर नेम है बेसिकली सुप्रिया AKA सुप्रिया चक्रवर्ती and Abhay Dang versus Union of India through Secretary Minister of Law and Justice and other। इसमें जो अदर केसेस ओके है ना, उसमें 20 से ज्यादा केसेस हैं। अभी तक 52 पिटिशंस फाइल हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के कि क्या हमें सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अभी जो हमने ब्रीफ किया सारा जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो जुडिशियल एक्टिविज्म की जो हिस्ट्री है पूरी, 3 केस हमने डिस्कस किए, वो एक माहौल क्रिएट कर रहे थे कुछ 6-7 सालों से कि यस जुडिशरी इज अबाउट टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज, या फिर जुडिशरी इंटरेस्टेड है, या जुडिशरी सोच रही है, या वो जुडिशियल एक्टिविज्म या वो आर्टिकल 21 को दोबारा से एक्सटेंड वे में लेगी और कह देगी कुछ केसेस के अंदर कि यह सेम सेक्स मैरिज अब से हम इसको रिकॉग्नाइजेशन देते हैं और लीगल मैरिज है। सो बेसिकली ये एक इम्पोर्टेंट केस है। अभी तक 52 पिटिशंस फाइल हुई हैं। अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि इसमें जो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है इस केस को करने के लिए, 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जजेस हैं जो कि इस पूरे केस को डील कर रहे हैं, क्योंकि ये केस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन जैसी चीजें इसमें बताई गई हैं, आर्टिकल 14 का वायलेशन, 19 का वायलेशन, 21 का वायलेशन पिटिशनर साइड से। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी गई। आई होप आप सब क्लियर होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कब बैठती है, जब भी हमारे फंडामेंटल राइट इंफ्रिंजमेंट होता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जब रेज होता है किसी भी केस के अंदर, तब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही उस केस को देखती है। तो यहाँ पे 5 जजेस हैं, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। आप में से कौन बंदा ऐसा है जो 5 जजेस में से किसी भी एक जज का नाम मुझे बता देगा? जो 5 जज, आई होप आप सब इस पेपर पढ़ते होंगे एज अ लीगल लॉ स्टूडेंट, एज अ एडवोकेट, एज अ जज और एज अ लीगल एडवाइजर ऑफ कंपनी। हम चीफ नीट जस्टिस में ऑफ पढ़ते ही इंडिया होंगे। चौंदोचूर, यस, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, ऑफ इंडिया। यस यस। मैम तो मिस्टर संजय कौल। ओके ओके। तो लाइक मिस्टर संजय कौल ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट है। CJI DY चंद्रचूड़ जो कि अपने कंट्री के CJI है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जजेस में से एक जज है। दूसरे जज है जस्टिस SK कौल, थर्ड है जस्टिस रविंद्र भट्ट, फोर्थ है जस्टिस सीमा कोहली एंड फिफ्थ है जस्टिस PS नरसिम्हा। सो आई होप आपने जजेस के जो 5 जजेस देखे हैं, आपने एंड जजेस को और भी अदर केसेस में देखा होगा। आई होप कुछ बच्चे या कुछ भी पार्टिसिपेंट्स जो कि लगातार सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग देख रहे होंगे या फिर उनको गो थ्रू कर रहे होंगे न्यूज़पेपर से या न्यूज के किसी भी साइट से, तो आप पता लगा पा रहे होंगे कि कौन कौन जज यहाँ पे बैठा है और कौन से जज हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, उनका जस्टिस इक्विटी गुड कॉन्शियसनेस कैसे काम करता है और बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 जजेस है। अब हमारा वेबिनार का एक दूसरा
स्टार्ट होता है, जो कि एक रियल पार्ट है जिसके लिए आज हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं. So now we will discuss about some logics, some facts which in support of same-sex marriage. Okay. So सबसे पहला जो कंटेंशन है जो पिटिशनर ने दिया केस के अंदर, पहला कंटेंशन है कि मैं एज अ गे, एज अ लेस्बियन, एज अ बाइसेक्सुअल किसी भी सेम जेंडर से किसी भी पर्सन से शादी करूं, वो मेरा फंडामेंटल राइट है. सबसे पहला कंटेंशन. और अगर इस तरह की चीजें वैलिडिटी नहीं है, अगर इस तरह की चीजें वैलिड नहीं है, तो अगेन मेरे आर्टिकल 14 का वायलेशन, इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19. सो बेसिकली हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं. India got membership and India became a signatory member in UDHR. UDHR is a document, Universal Declaration of Human Rights, which was prepared by United Nations in 1948. UDHR deals with 30 human rights. So India भी 1948 अक्टूबर 19 में UDHR का मेंबर बना. सिग्नेटरी मेंबरशिप इंडिया ने 1948 में ली, और तभी से इंडिया के ऊपर एक ड्यूटी आ गई कि उसको 30 ह्यूमन राइट अपनी कंट्री के अंदर एप्लीकेबल करना है किसी ना किसी वे में. तो हमने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में उन ह्यूमन राइट को रिलेवेंट से दिखाने के लिए एज अ फंडामेंटल राइट उनको शो किया, और हमें पार्ट 3 मिल गया एज अ यूडीएचआर. सो बेसिकली पिटिशनर का पहला कंटेंशन यही है कि जब यूडीएचआर का मेंबर इंडिया है 1948 से, और यूडीएचआर जो राइट टू मैरिज का ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो मैरिज की परमिशन दे रहा है, वो उसको ह्यूमन राइट ट्रीट कर रहा है. सो फिर कोई और राइट टू मैरी, ऐसा नहीं कि आपको अपोजिट सेक्स के साथ करना, सेम सेक्स के साथ. सेम सेक्स मैरिज जब यूडीएचआर अलाउ कर रहा है, और इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूडीएचआर, सो सेम सेक्स मैरिज इंडिया के अंदर क्यों एप्लीकेबल नहीं है या क्यों लीगलाइज नहीं है. पहला कंटेंशन, पहली चीज यही है पिटिशनर साइड से. और अगर सेम सेक्स मैरिज यहाँ पे अगर वैलिड नहीं है, लीगलाइज नहीं है, तो पिटिशनर्स की, उन गेज की, उन लेस्बियंस, उन बाइसेक्सुअल, उस पूरी एलजीबीटी कम्युनिटी का वायलेशन है. इंडिविजुअल लिबर्टी का वायलेशन है, राइट टू लाइफ का वायलेशन है, और आर्टिकल 15 का वायलेशन है, जो कि बात करता है नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, रेस, सेक्स एक्सेट्रा. ठीक है. सो बेसिकली फर्स्ट कंटेंशन इज फ्रॉम पिटिशनर साइड दैट same sex marriage or to marry with same gender is a part of fundamental right, because India is a member of DHR from 1940 since 19. There's a duty upon India to legalize same-sex marriage. So पहला contention I hope आपको clear होगा, part of a fundamental right, जो कि important contention है petitioner side पे आजकल की judicial proceeding में. Second contention is silence of personal laws. Okay. मेरे पास है Hindu Marriage Act, Muslim Marriage Act. If we talk about Section 5 of Hindu Marriage Act, if we talk about Section 5 of Hindu Marriage Act, Section 5 deals with the condition for a Hindu marriage. So I read the whole Section of 5. A marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled. Yes, आपने सही सुना. If a marriage may be solemnized between any two Hindus. का second condition ये है अपनी कंट्री के अंदर जो भी पर्सनल लॉज है, बिकॉज मैरिज इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लॉ. मैरिज, डाइवोर्स, पेरेंटलहुड, अडॉप्शन जैसी चीजों को अपनी कंट्री के अंदर अलग पर्सनल लॉ डील करते हैं. अगर बात करते हैं हिंदू लॉज की, तो हिंदू लॉ के अंदर जो मैरिज डील करता है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है. इसके अंदर भी जो सेक्शन नंबर 5 है जो बता रहा है कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ अ हिंदू मैरिज की क्या कंडीशन रहेगी, तो उसमें पहला कंडीशन ये है कि कोई भी दो हिंदू लोग शादी कर सकते हैं. उसमें ये नहीं लिखा है कि अपोजिट सेक्स के दो हिंदू पीपल. सो जब हिंदू मैरिज एक्ट ये बोल ही नहीं रहा है कि एक दो अपोजिट लीगल सेक्स के लोग शादी करें आपस में, या ये कंडीशन है, तो
फिर सेम सेक्स मैरिज को वैलिडिटी क्यों प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, पहला कंटेंशन ये। और अगर हम बात करें मुस्लिम मैरिज एक्ट की, यस हेलो Ma'am, I have a question regarding this, that in Special Marriage Act, section 4(1)(c), there was a specific age limit which is codified. If it is inserted, the Special Marriage Act, who will be the male and who will be the female? यस राइट, आपने सही कहा। स्पेशल मैरिज एक्ट एक पर्टिकुलर एज डिफाइन कर रहा है और उसके अंदर एज भी मेंशन है कि 18 फीमेल का होगा, 21 मेल का, 19 फीमेल का होगा और 21 मेल का होगा। ओके, जब ये डिसाइड कर दिया, बट स्पेशल मैरिज एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल होता है स्पेशल मैरिज एक्ट? जब जब दो अपोजिट जब दो अपोजिट रिलीजन के लोग शादी कर रहे हो, लाइक मैं हिंदू और एक मुस्लिम शादी करूं, कोर्ट मैरिज जब करूं, तो तब स्पेशल मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होता है। मैं एज अ मुस्लिम एक मुस्लिम शादी कर रही हूँ, तो क्योंकि अभी हम यहाँ पे जो सेकंड कंटेंशन है, अभी हम स्पेशल मैरिज एक्ट पे भी आएंगे, सर टेंशन मत लीजिए। बट ये जो पिछला कंटेंशन है, वो बात करें साइलेंस ऑफ पर्सनल लॉ, एंड स्पेशल मैरिज एक्ट डज नॉट इंक्लूड इन पर्सनल लॉज, इसलिए अभी मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट का एग्जांपल नहीं लिया है। अभी हम बात कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट पे, मुस्लिम मैरिज एक्ट में, और भी दोनों लॉज है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी। ये तीनों लॉज ही ये नहीं लिखते या ये मेंशन नहीं करते कि टू अपोजिट लीगल सेक्स के दो लोग शादी करें तभी ये मैरिज वैलिड है, तभी ये मैरिज एक हिंदू मैरिज है, तभी ये वैलिड मैरिज एक मुस्लिम मैरिज है, या तभी ये मैरिज एक क्रिश्चियन मैरिज है। तो जब हमारे इंडिया में पर्सनल लॉज ही साइलेंट हैं सेम सेक्स मैरिज पे, वो ही कुछ स्पेसिफिक कंटेंशंस यहाँ नहीं रख रहे हैं, तो फिर सेम सेक्स मैरिज वैलिड क्यों नहीं है? सेकंड कंटेंशन ये है। जितने इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको ये कंटेंशन पिटिशनर साइड से बता रही हूँ, रिस्पोंडेंट साइड से बताऊंगी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम बहुत न्यूट्रल वे में और बहुत एकेडमिक तरीके से इस पूरे वेबिनार को करेंगे। ये कोई डिबेटेबल टॉपिक या कोई डिबेट कॉम्पिटिशन नहीं है। ओके, सो पहला कंटेंशन ये कि पर्सनल लॉ साइलेंट है इस चीज पर, और पिटिशनर का ये भी जब पर्सनल लॉज के बारे में डिस्कशन हुआ कोर्ट के अंदर, तो ये भी बात बताई गई कि हस्बैंड और वाइफ को जो वर्ड लिखे हुए हैं पर्सनल लॉज के अंदर, उनको रिप्लेस कर दिया जाए फ्रॉम द वर्ड स्पाउस, कि जो स्पाउस वर्ड है वो लिख दिया जाए हस्बैंड और वाइफ की जगह, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बिकॉज ये जो केस है सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अभय, इस केस के अंदर 3 तरह के राइट्स वो सीख कर रहे हैं। पेटिशनर वांट टू गेट 3 राइट्स, लाइक राइट टू मैरी, राइट टू पैरेंटलहुड, एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी। इस तरह की चीजें पिटिशनर साइड मांग रहा है। तो जब पिटिशनर ये बोल रहा है कि क्योंकि गवर्नमेंट का कंटेंशन या फिर रिस्पोंडेंट का कंटेंशन ये है कि हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड कौन होगा जो मेल होगा, वाइफ कौन होगी जो फीमेल होगी। जहाँ पे लेस्बियन शादी कर रहे हैं, जहाँ पे गेज शादी की मांग कर रहे हैं, गेज शादी करना चाह रहे हैं, वहाँ पे हम हस्बैंड और वाइफ किसको कंसिडर करें? तो पिटिशनर उसका भी एक ऑप्शन बता रहे हैं कि आप हस्बैंड और वाइफ पर्सनल लॉ से हटा दीजिए, हम ये वहाँ पे वर्ड स्पाउस एंटर कर देंगे। तो इस तरह की बातें, इस तरह का डिस्कशन कोर्ट के अंदर चल रहा है। ठीक है। थर्ड है, आफ्टर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी पर्सन आर फ्री टू एस्टैब्लिश अ मैरिटल स्टेटस। यस, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई पिटिशनर साइड से, कि जब होमोसेक्सुअलिटी की डिस्क्रिमिनेशन डिक्रिमिनलाइज कर दी गई पिछले केसेस से, तो फिर पर्सन्स तो फ्री रहने चाहिए मैरिटल स्टेटस, मतलब पर्सन्स फ्री हैं अपना मैट्रिमोनियल स्टेटस एस्टैब्लिश करने के लिए, जब अपनी कंट्री अननेचुरल ऑफेंसेस को ही डिक्रिमिनलाइज कर रही है, उनको एक पीनल प्रोविजन के अंदर फॉल होने नहीं दे रही है। उसका एक जुडिशियल प्रेसिडेंट हमारे पास आ गया है। तो अब ऐसी कंडीशंस के अंदर पर्सन्स, वो ऐसे पर्सन्स जो कि गेज हैं, जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, उनके पास ये राइट होना चाहिए कि वो एक मैट्रिमोनियल स्टेटस क्रिएट कर सके अपने रिलेशनशिप के अंदर। अगर हम बात करते हैं अगेन, एक और कंटेंशन था एलजीबीटी कम्युनिटी का कि दीज कपल्स कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, राइट। इस तरह की बातें, बहुत सारे इश्यूज रेज हुए केस प्रोसीडिंग के दौरान। उस पर्टिकुलर आप 52 पिटिशंस हैं
मोर देन 20 केसेस हैं, आप बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कशन करेंगे, आप पाएंगे कि बहुत सारे इश्यूज रेज होंगे। लेकिन अभी अभी इस वेबिनार के अंदर हमने 3-4 इश्यूज से हम डील कर रहे हैं। पहला तो क्या कि इट इज अ फंडामेंटल राइट और नो टू marry with the same sex. Second is what is the stand of personal laws, है ना, मतलब personal laws allow same sex marriage in India or not. And third is LGBT community or same sex marriage couple can adopt a child or not, है ना। तो इस तरह की इश्यूज हम अब डील कर रहे हैं। तो ये जो थर्ड वाला जो चीज है, LGBTQ कम्युनिटी कपल कैन अडॉप्ट द चाइल्ड, तो पिटिशनर चाह रहे हैं कि LGBT कम्युनिटी क्या करें, जो कपल्स हैं वो एक चाइल्ड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी हम रिस्पोंडेंट के आंसर्स भी देखेंगे, रिस्पोंडेंट के व्यूज भी देखेंगे, उनके रिव्यू भी देखेंगे, उनके आंसर भी देखेंगे, उन्होंने कोर्ट रूम में इस पर्टिकुलर इश्यूज के बारे में क्या कहा है। यस, अब मैं आंसर दूंगी स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में, जहाँ पे एज मेंशन है और एज के सामने पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि जो पर्सन है वो मेल है या फीमेल, जेंडर रिकॉग्नाइज किया गया है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कि इतना एज होना चाहिए, 18 और 21। उसके बाद हमारे पास चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी है, जहाँ पे पर्टिकुलर मैरिज का एक एज लिखा हुआ है कि फीमेल कितनी और मेल कितनी। तो यहाँ पे तो फिर हम क्या करें अगेन, इस तरह के इश्यूज के अंदर जब हमारे पास एक ही सब्जेक्ट पे लाइक हमारे पास सब्जेक्ट है मैरिज, एक मैरिज सब्जेक्ट पे हमारे पास एम्फल ऑफ लॉज हो, लाइक हमारे पास पर्सनल लॉज भी है, हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, हमारे पास चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी है। तो ऐसी कंडीशंस में डेडलॉक क्रिएट होना अगेन बहुत लाजमी बात है, कंफ्यूजन क्रिएट होना लाजमी बात है। सो अगेन हम चाइल्ड मैरिज में ऐसा नहीं है कि यही इशू है कि मैरिज का है कि पर्सनल लॉ साइलेंट है तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट बात कर रहा है, खुल के बात कर रहा है, या फिर जो दूसरा एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट वो अच्छे से बात कर रहा है। यही कंफ्यूजन नहीं है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के अंदर या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में अंदर, बहुत सारे कंफ्यूजन और हैं हिंदू ब्राइड को लेके, एक माइनर हिंदू ब्राइड को लेके। हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू ब्राइड को लेके कुछ और अदर बात कर रहा है, चाइल्ड रेस्ट्रेंट एक्ट कुछ और अदर व्यू रख रहा है। तो वहां पे एक डेडलॉक क्रिएट होने की कंडीशंस रहती है पार्लियामेंट में जो लॉ बनाया है और जो जुडिशियल जजमेंट दिया है उसके बीच में। तो आगे हम बात करते हैं कि नाउ वी विल टॉक अबाउट सम लॉजिक्स एंड सम फैक्ट्स इन अगेंस्ट ऑफ सेम सेक्स मैरिज की व्हाट आर द लॉजिक्स एंड व्हाट आर द फैक्ट्स। सबसे पहला जो व्यू है हमारा वो है अनफिट विद इंडियन ट्रेडिशंस। ओके, कि सेम सेक्स मैरिज इज अनफिट विद इंडियन ट्रेडिशन। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, रिस्पोंडेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एडवोकेट्स हैं उनके जो व्यूज हैं, या फिर आपने अदर गवर्नमेंट से राजस्थान गवर्नमेंट का व्यू सुना होगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का व्यू सुना होगा, हरियाणा गवर्नमेंट का व्यू सुना होगा सेम सेक्स मैरिज को लेकर, सभी एक वॉइस में बोले कि नवंबर से केस चल रहा है, नवंबर से लेकर अभी तक कि यस सेम सेक्स मैरिज अनफिट है इंडियन ट्रेडिशन को लेकर, इंडियन सोशल फैब्रिक को लेकर, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट चली जाती है। बहुत सारे अभियान, बहुत सारे सिग्नेचर अभियान भी स्टार्ट किए गए अदर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह की चीजें यस यस कामरा सर। Ma'am, Khushi ma'am is saying that ki PPT is not available, but PPT is fully available. हमको प्रॉपर वैसे हेलो, दिख रही है। मेरी वॉइस आ रही है? हेलो हेलो हेलो। यस सर बताइए। खुशी मैम बोल रहे हैं कि पीपीटी अवेलेबल शो नहीं हो रही प्रॉपर वैसे, मतलब मैसेज चैट बॉक्स में, लेकिन हमें तो प्रॉपर शो हो रही है। हाँ यस सर पार्टिसिपेंट्स को नहीं हो रही है। पार्टिसिपेंट्स को नहीं हो रही? सर फोकस मोड ऑन किया है आपने? ये लो जी, एंडिंग कर दिया। ओके, अब शो हो रही है? अब शो हो रही है सबको पीपीटी? बताइए। नो सर। आगे आगे। यस सर। Okay, fine. So there are some logics, some contentions, some facts in against same-sex marriage in India. Many state governments or central government
established their view that same-sex marriage is unfit with Indian tradition or is against the religious sentiment of people, and it is against the majority of peoples. And because India is a democratic country और यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका सेम सेक्स मैरिज को लेकर अनफिट है, सोशली भी और ट्रेडिशनली भी, और अगर हम बात करें लीगली भी. If we talk about the view of government, like same-sex marriage is unfit with Indian tradition, or it will create imbalance in Indian social fabric. So we can discuss about the view of HLA Hart. If you are a law student, you have read jurisprudence, you have read analytical school of jurisprudence. Actually, in his book, The Concept of Law, HLA Hart finally stated that कुछ ऐसे लॉज रहते हैं, कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं जो सोसाइटी के अंदर चले आ रहे होते हैं. ठीक है, यानी कोई भी लॉ जो कि स्टेट रिकॉग्नाइज करता है, वो लॉ सोसाइटी पहले ही रिकॉग्नाइज कर देती है. सोसाइटी के रिकॉग्नाइजेशन मिलने के बाद उस रूल रेगुलेशन को स्टेट रिकॉग्नाइज करता है. तो कोई भी लॉ जो स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहा है, उससे पहले वो सोसाइटी से रिकॉग्नाइजेशन होकर जाता है. और रिस्पोंडेंट का यहाँ व्यू है कि सेम सेक्स मैरिज इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत अनफिट है, इंडियन सोशल फैब्रिक के लिए बहुत अनफिट है. सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है. वैदिक पीरियड में भी नहीं करी, मिडिवल पीरियड में भी नहीं करी, ब्रिटिश पीरियड में भी नहीं करी, और अब आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, अब भी हम ये देख रहे हैं कि LGBTQIA कम्युनिटी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है इन सब चीजों के लिए. सो बेसिकली HLA हार्ट के व्यू के साथ और एक मेजोरिटी व्यू के साथ रिस्पोंडेंट इस बड़े कंटेंशन को रखता है कि सेम सेक्स मैरिज इज नॉट अ ह्यूमन राइट, और इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, 14, 19, 15, but it is a unfit character with the Indian tradition. It can create imbalance in Indian social fabric. Yes, second contention is कि marriage is a social institution. वहाँ पिटिशनर ने बोला कि marriage is a part of right to privacy. Right to privacy organization मिली 2017 में as a fundamental right under article 21 of Indian Constitution. So ऐसी कंडीशन में जब पिटिशनर एक तरफ बोल रहा है कि सेम सेक्स मैरिज क्या है, फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है, राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है, मैं अपने पर्सनल लाइफ में किसी के साथ भी शादी करूं, चाहे एक लड़की से, चाहे एक लड़के से, सेम सेक्स से या बाइसेक्सुअल पर्सन से या ट्रांसजेंडर से, इसको स्टेट से मतलब नहीं होना, इस चीज से स्टेट को मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू privacy, and it is a part of dignity, is a part of life. But on the another hand, respondent established his view that marriage is a social institution, और अगर दो सेम सेक्स के लोग शादी करेंगे तो उस पर्टिकुलर मैरिज का जो इफेक्ट है वो सोसाइटी पे नेगेटिव पड़ सकता है, बिकॉज इट इज अनफिट कैरेक्टर विद इंडियन ट्रेडिशंस. इस तरह के व्यूज रखे जा रहे हैं रिस्पोंडेंट के द्वारा इन सभी केसेस के अंदर. उन्होंने कहा, रिस्पोंडेंट ये भी कह रहे हैं कि जो हेट्रोजीनियस और हेट्रोसेक्सुअल मैरिज है कंट्री के अंदर, अपोजिट सेक्स के साथ जो मैरिजेस होती हैं वो भी एक्सेप्टेबल है हजारों सालों से, और वो ही इट इज अ पार्ट ऑफ कस्टम. सो अगर हम बहुत एज अ लीगल थिंकर इस पूरे व्यू को देख रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं सेम सेक्स मैरिज को, सो वी कैन फाइंड दैट रिस्पोंडेंट और गवर्नमेंट एस्टैब्लिश देयर व्यू ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल व्यू ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, sociological school of jurisprudence and analytical school of jurisprudence. But on the other hand, judiciary is dealing with the natural school of jurisprudence. The naturalistic view के साथ वो काम कर रही है, रियलिस्टिक व्यू के साथ वो काम कर रही है, जहाँ पे जुडिशरी द्वारा दिए गए जजमेंट्स ही क्या है रियल, because it deals with the practicality in day-to-day life. So आगे हम बात करते हैं 2018 जजमेंट डज नॉट अलाउ मैरिज, एंड बेसिकली रिस्पोंडेंट का जो थर्ड व्यू है वो कहता है कि 2018 का जजमेंट है
वो अलाउ नहीं करता है कपल्स को राइट टू कोहैबिटेशन। 2018 की जजमेंट में अननेचुरल ऑफेंसेस को हमने नेचुरल ऑफेंसेस डिक्रिमिनलाइज पहले ही हो गए थे, लिव इन रिलेशनशिप को हमने वैलिडिटी प्रोवाइड करी। आगे भी बहुत सारे केसेस आए जहाँ पे हमने लिव इन रिलेशनशिप को वैलिडिटी प्रोवाइड की, हाँ बशर्ते कि वो सभी केसेस के अंदर सेम सेक्स के लिव इन रिलेशनशिप को वैलिडिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, इस पे कुछ साइलेंट थे। बट 2018 के बाद के जजमेंट के बाद कपल्स को राइट मिल गया कि वो राइट टू कोहैबिटेशन को कर सकते, उनको कोहैबिटेशन का राइट तो है, राइट टू कोहैबिट तो है उनको, बट इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू मैरी। तो रिस्पोंडेंट का थर्ड कंटेंशन था कि 2018 का जजमेंट only give right to cohabit, not give right to marry to LGBTQ community. Okay. So, and third is for this heterosexual man and woman as a parent. Again, अगर सेम सेक्स मैरिज के अंदर, इस केस के अंदर फोर्थ जो थर्ड इशू है वो यही, थर्ड या फोर्थ इशू वो यही है कि LGBTQ कम्युनिटी चाहती है कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइजेशन तो मिले, साथ ही साथ हमें राइट टू पेरेंटल का भी एक राइट मिल जाए। बट ऑन द अनदर हैंड रिस्पोंडेंट के अपने व्यू ये है कि only in and only heterosexual man and woman can be a parent of a child. अगर एक चाइल्ड को, एक बच्चे को मेल और फीमेल यानी एक उनके मदर और फादर फिगर दोनों के ही प्यार, दोनों का ही सपोर्ट नहीं मिला तो उस चाइल्ड की भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो सकता है, उसका भी आर्टिकल 21 वॉयलेट हो सकता है। तो जहां हम एक तरफ सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइजेशन अगर हमने दे रहे हैं और अगर हम वहां पे राइट टू पेरेंट भी उनको दे रहे हैं, तो वहां पे जो बच्चा होगा उनका, वो बच्चा भी कहीं ना कहीं सफर करेगा, उसका भी आर्टिकल 21 वॉयलेट होगा, क्योंकि उसको वो प्यार नहीं मिल पाएगा जो कि हेट्रोसेक्सुअल मैन एंड वुमेन एज अ पेरेंट उसको दे सकते हैं। इस तरह के व्यूज रिस्पोंडेंट ने रखे हैं। आई होप आपको समझ आए हैं रिस्पोंडेंट के साइड के जो व्यूज हैं। पहला, फर्स्ट इज सेम सेक्स मैरिज इज अनफिट विद इंडियन ट्रेडिशन। सेकंड इज मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इट इज नॉट अ पार्ट of right to privacy, or it is not a part of article 21. Now if a person who belongs from a same sex marry with each other, so it affect society negatively and it create imbalance in the social fabric of India. Third is a 2018 judgment does not allow marriage in LGBT community. Fourth is only heterosexual male and woman, man and woman can become a parent of a child. So yeah, these are the four contention from respondent. And if we talk about a contention from petitioner, so उनका पहला कंटेंशन तो यही है कि इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। सेकंड इज आवर पर्सनल लॉ इज साइलेंट ऑन सेम सेक्स मैरिज, एंड उसके बाद एलजीबीटी कम्युनिटी कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। सो नाउ यू ऑल आर क्लियर about the debatable topic or about the whole issues or whole discussion which is going on in Supreme Court in this matter. So yes, now we will discuss about again an important topic. If same sex marriage is legalized in India, तो क्या होगा? अगर हम same sex marriage को legalize करते हैं तो again क्या क्या conditions होंगी? तो पहला तो यही कि we will get a new fundamental right, same sex marriage in article 21, and we can get a more extensive way of article 21. स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 का स्कोप बढ़ जाएगा, क्योंकि एज पर लीगल थिंकर्स ऑफ दिस कंट्री और एज पर द जूरिस्ट अदर कंट्रीज, हम पाएंगे कि उनका कंटेंशन यही है कि अगर अपनी कंट्री के अंदर सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट का स्कोप बढ़ा दीजिए। और अगर यस पर्सनल लॉस को वो अफेक्ट करेंगे, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आपने डाला कि सेम सेक्स के दो पर्सन शादी कर सकते हैं तो पर्सनल लॉस को तो अफेक्ट करेंगे कि एज पर हिंदू ट्रेडिशन, इफ वी टॉक अबाउट हिंदू ट्रेडिशन और हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू लॉ बेसिकली, तो हम पाएंगे कि अगर दो सेम सेक्स के पर्सन शादी कर रहे हैं तो वो अधर्म है ना, इट इज अ काइंड ऑफ अधर्मा और इट इज अ काइंड ऑफ वॉइड थिंग। सो बेसिकली अगर सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज हो जाता है तो पर्सनल लॉस को अफेक्ट करेगा,
स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 का स्कोप बढ़ जाएगा, हमें एक नया फंडामेंटल राइट मिलेगा in Article 21. For this, legislative bodies would have to amend लेजिस्लेटिव बॉडीज के ऊपर एक नया दबाव, एक नया प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, या एक नई गाइडलाइंस भी आ सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो ये कह दे कि यस हम सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर रहे हैं, और दूसरा गाइडलाइंस भी दे दे या ऑर्डर दे दे पार्लियामेंट को, लेजिस्लेटिव बॉडीज को, कि नाउ इट इज अ टाइम टू amend personal laws, or it is a time to make a new law, a new codified law on same sex marriage. Okay, and fifth है, it will affect child welfare, as a child need care of father and mother figure growth. So respondent का जो view है parentalhood पे, उसको नकारा नहीं जा सकता, because as a child का जो welfare है, या जो child का जो पूरा behavior है पैदा होने से लेकर के बड़ा होने तक, उसको फादर और मदर फिगर दोनों की ही जरूरत पड़ती है. अगर दो लड़कियां एक बच्चे को अडॉप्ट कर रही हैं, दो गेज एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो कहाँ से वो अपोजिट पेरेंट का फीचर क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगेन फिजिकली और इमोशनली तो वो ही है ना जो वो अंदर से फील कर रहे हैं. Okay, then sixth है, in a case of dissolution of same-sex marriage, burden of matrimonial cases will arise. Yes, ये contention है. जब LGBTQ community को या थर्ड जेंडर को जब रिकॉग्नाइजेशन मिली, उस वक्त भी ये कंटेंशन बहुत ज्यादा सीरियस इशू में था. उस वक्त भी इन चीजों के ऊपर बहुत डिस्कशन था कि जब आपने अननेचुरल ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, उसको पेनल प्रोविजन से हटा दिया, थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी आपने फंडामेंटल राइट बना दिया, तो अभी तक सेम सेक्स मैरिज को क्यों लीगलाइजेशन नहीं दिया? बिकॉज हमने, if we talk about the historical background of same sex marriage, so we can find in European history or in US history or in Indian traditions also, कि same sex marriage was not a type of permanent marriage. So it is not necessary कि जो आज हम फील कर रहे हैं एक पर्सन के प्रति, और आज हम शादी करना चाहते हैं एक लड़की से, वो 10 साल बाद भी वही फीलिंग रहेगी. और उन 10 सालों में अगर हमने अपनी फैमिली स्टैब्लिश की, हमने शादी की और हमने वो बच्चों को अडॉप्ट किया, तब वो बच्चों के राइट अफेक्ट होंगे, क्योंकि जब हम एक मैरिज को वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो डिसोल्यूशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज के बारे में भी सोचना बनता है. सो इफ Supreme Court if Supreme Court will give legalization to same-sex marriage, so we need to discuss about the dissolution of same-sex marriage also. So again, सभी शादियां नहीं चल सकती, right? So there are some points जो कि अगर same-sex marriage legalize हो जाता है कंट्री में, तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है बेसिकली, या क्या क्या हमें नए फीचर देखने को मिलेंगे, क्या नए बदलाव हमें अपने कानून में, अपने लीगल सिस्टम में देखने को मिल सकते हैं. यस, यूडीएचआर का स्कोप बढ़ जाएगा, पार्ट 3 का स्कोप बढ़ जाएगा, आर्टिकल 21 का स्कोप बढ़ जाएगा, है ना, एंड we can get a new law, a new codified law on same-sex marriage. But if we talk about a parentalhood, or if we talk about the dignity of a marriage, so यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है. सो थैंक यू सो मच. आज का जो वेबिनार है यहीं समाप्त खत्म होता है. If you have any doubt about this topic, you can raise your hand and you can ask the questions. Ma'am, If you have will, any doubt on a same-sex marriage, yes. It will have serious effect to extend that like Senior Citizen Act, like Maintenance Act, Domestic Violence Act. Is not it? Right. Basically अगर हम बात करें सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कराने की, तो वहां पे डाउरी डेथ के केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस के जो कॉजेज हैं, जो कारण है, लाइक क्रुएलिटी और मैरिटल रेप जैसी कंडीशंस, इस तरह की कंडीशंस पे भी बात करनी पड़ेगी,
है ना, if we want a codified law on same sex marriage or legalization of same sex marriage, so we can also find some changes, or we can need some changes in our criminal law या penal law अगर हम कहें तो. So ये चीज तो होगी ही डेफिनेटली. ये जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पर्सनल लॉस को अफेक्ट होगा, पर्सनल लॉस चेंज होंगे, और पेरेंटलहुड की जो कंडीशन आएगी या उनके राइट्स अफेक्ट होंगे, वहां पे हमें अपने क्रिमिनल लॉ को भी इमीडिएटली चेंज करने की जरूरत पड़ेगी. सो वेट एंड वॉच कि क्या होता है. नवंबर 2022 से केस चल रहा है, और हम देयर इज अ एम्पल ऑफ एग्जांपल्स जब हम देख रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस कि जुडिशरी और गवर्नमेंट, जुडिशरी और या मैं कहूँ एग्जीक्यूटिव्स के बीच में जो टकराव है कुछ इश्यूज को लेकर, जहाँ जुडिशरी बहुत एक्टिविज्म दिखा करके जजमेंट दे रही है और एग्जीक्यूटिव इज नॉट कंफर्टेबल अबाउट द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर हाई कोर्ट. तो इस पर्टिकुलर सीरीज में सेम सेक्स मैरिज के ऊपर भी जुडिशरी का क्या व्यू है और फिर देन एग्जीक्यूटिव का क्या एक्शन होगा, वो इंटरेस्टिंग होगा हम सबके लिए. सो ये एक टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है. if anybody share his experience about. Yes. गाइस कोई है क्वेरी वगैरह, कोई क्वेरी वगैरह और हो तो बता सकते हैं मैम को आप. मैम स्क्रीन स्टॉप कर लो अपने, अब तो हो गया ओवर ना. स्क्रीन में स्टॉप कर लो पीपीटी वाली. आपका कैम ऑफ हो गया, वो ऑफ करने के लिए नहीं बोला था. गाइस आपको मेल आ गई है, चेक कीजिए एक बार. फॉर्म भी मैंने भेज दिया है सभी को. व्हाट्सएप कर देख, चेक कर लीजिए एक बार, मेल भी चेक कर लीजिए, सभी को आ गई है. यस सर. तो एंड करें फिलहाल अभी. श्वेता मैम लास्ट आपकी जो है, जो बोलते हैं आप लास्ट में प्लीज. May I say Yes, something? Yeah, ma'am. यस मैम. Yes. So I would like to thank the KAMRA Associates कि उन्होंने मुझे invite किया इस particular topic पे बोलने के लिए. वेलकम मैम. So I would like I would like to express my gratitude to all of the participants जिन्होंने मुझे इतने ध्यान से सुना और अपने views भी रखे. And so yes, thank you so much. मैम ये कुछ क्वेरिया रखिए नीचे क्वेश्चन बॉक्स में. हिंदू Yes. मैरिज एक्ट, देयर इज एनी प्रोविजन रिलेटेड टू सेम सेक्स मैरिज? नो, कोई भी ऐसा प्रोविजन सेम सेक्स मैरिज को लेकर नहीं मिलता है. बट सेक्शन नंबर 5 है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, जो कि ये बात कर रहा है कि कोई दो हिंदू शादी कर सकते हैं, है ना. ओके, आई कैन रीड सेक्शन नंबर 5 ऑफ. या श्योर मैम. गाइस काइंडली टर्न ऑन योर कैमरास. लास्ट पिक्चर ले लेते हैं सभी की ना, एक ग्रुप फोटो. सो वी विल शेयर ऑन यूट्यूब. सो प्लीज काइंडली टर्न ऑन योर कैमरास ऑल. Yes, a marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled. तो इसमें पहला ही लाइन क्या है कि कोई मैरिज कोई भी दो हिंदूज के बीच में सोलेमनाइज्ड हो सकती है अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस रहे. फॉलोइंग कंडीशंस क्या है कि एक आप बाइगेमी नहीं होना चाहिए, आपका कोई स्पाउस नहीं होना चाहिए जब आप शादी करना चाहते हैं, देन एक वैलिड कंसेंट होना चाहिए, कैपेबल मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए. ये सारी कंडीशंस है. बट पहला ही क्या है कि कोई भी दो हिंदू शादी कर सकते हैं. उसमें ये नहीं लिखा है कि दो अपोजिट सेक्स का होना जरूरी है. मैम तो बट जब सेक्शन इसमें नंबर 5 ही साइलेंट है तो हाँ जी बताइए. मैम इसमें सेक्शन नंबर 5 में ये लिख रखा है, ये प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन तो यस दो यस, मेल और प्रोक्रिएशन ऑफ फीमेल, चिल्ड्रन के लिए कैपेबल. यस डेफिनेटली तो प्रोक्रिएशन ऑफ उसमें चिल्ड्रन के लिए वो आ कैपेबल गया ना नहीं है. मैम, मेल और फीमेल आ गया ना, तो यस दो बिल्कुल मेल आ गया. कैसे हो? इसी टॉपिक के ऊपर, यही टॉपिक के ऊपर केस चल रहा है. अगर सब कुछ एकदम क्लियर होता आपकी बैरेक्स में तो फिर वहां पे क्यों बहस हो रही थी या हम आज वेबिनार क्यों कर रहे होते. जहां पिटिशनर एक तरफ ये बोल रहा है कि राइट टू मैरी मेरा ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है. और फंडामेंटल राइट है क्योंकि इंडिया 1948 से सिग्नेटरी मेंबर है यूडीएचआर का. और यूडीएचआर
ह्यूमन राइट टू मैरी को एक ह्यूमन राइट बनाया है। यूडीएचआर भी न्यूट्रल है कि दो लोग शादी कर सकते हैं किसी भी सेक्स की। तो जब यूडीएचआर के आप मेंबर हैं और यूडीएचआर अलाउ कर रहा है और इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल इंडिया पे, तो इंडिया कैसे अलाउ नहीं कर रहा है? पहला कंटेंशन उनका यही है सबसे बड़ा, जिसपे वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फाइट कर रहे हैं। बट ऑन द अनदर हैंड, जैसे कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन है ना, हर मैरिज का ऑब्जेक्टिव है प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, और यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज में प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन जैसी कोई भी चीज हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो बच्चे गोद ले लेंगे, वी कैन अडॉप्ट द चाइल्ड ना। बट बच्चे अडॉप्ट ले लेंगे तब भी तो उस बच्चे का फंडामेंटल राइट वायलेशन है, क्योंकि उसको मदर फिगर एंड फादर फिगर दोनों का प्यार, दोनों का वो लविंग एंड केयरिंग वाली चीज नहीं मिली। सो यहाँ पे पॉइंट्स बहुत सारे हैं, ऐसी कंडीशंस जहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन ऑफ लॉज हो जाएं, इतने सारे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हो जाते हैं, अगेन वो केसेस फिर कंट्रोवर्शियल बनता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है, ये सारी कंडीशंस। तो इसीलिए हम आज वेबिनार कर रहे हैं, और यही ताकत है एडवोकेट्स की कि वो किस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं और किस तरीके से हम चीजों को रख रहे हैं, और फिर जुडिशरी कैसे जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियसनेस से जजमेंट दे रही है। Yes, if you have if you have any other doubt, you can raise your. खुशी का डाउट है कोई? Yes, प्लीज अपना माइक को मिस म्यूट कर लीजिए। प्लीज म्यूट योर माइक, काफी शोर आ रहा है। खुशी मैम का मैम था एक, मिस्टर अश्विन स्लीपिंग कर रहे हो या फिर वेबिनार सुन रहे हो आप? मैम खुशी मैम का एक वो है, एक्चुअली मैसेज किया उन्होंने। यार एक मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ना किसी का पीए अपॉइंट नहीं हूँ यहाँ पे जो बार बार मैं मैसेज देख के बताऊंगा। आप प्लीज बोला करें, अगर नहीं बोलना इन केस तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, सीधी सी बात है, बात का माइंड मत करना कोई भी। मैं किसी का पीए नहीं हूँ कि मैं मैसेज देख के बार बार बताता रहूंगा मैम को। जिसकी क्वेरी है प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा सभी आप लोग बोलें। ये वेबिनार इसलिए अरेंज किया गया ताकि सभी लोग बोलेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, तो अच्छे से समझ आएगी आपको भी, हमें भी। गलत तो नहीं कह रहा भाई? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू कृष्ण, थैंक यू मुखर्जी सर, थैंक यू। कोई अदर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैम माइक ऑन नहीं हो रहा, Yes. कह रहे मैम कौन से, एक सेकंड संजय जी, किसके पीछे वॉइस आ रही है? वॉइस किसके पीछे आ रही है? ये प्लीज वॉइस से दूर आ जाइए आप। मैम कौन कौन से कंट्री में सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज हो गए हैं अभी तक? लाइक जैसे कि हमने पीपीटी में के दौरान ही बताया था, लाइक कोलंबिया है, जर्मनी है, इस तरह की कंट्रीज के अंदर लीगलाइज है सेम सेक्स मैरिज। मोर देन 30 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइजेशन प्रोवाइड है। वो उनके पास ये भी राइट है कि वो राइट टू अडॉप्शन भी है उनके पास, राइट टू पेरेंटलहुड एंड राइट टू मैरी। ये 3 राइट LGBTQIA कम्युनिटी को दे दिए गए हैं। इसके पीछे सिर्फ यही एक रीजन है कि वहाँ की कंट्री के अंदर इतना सारा डेडलॉक नहीं है, इतना सारे कोडिफिकेशन ऑफ लॉज नहीं है, इतने सारे एम्पल ऑफ लॉज नहीं है एक सब्जेक्ट को लेकर, है ना। या फिर हम ये कहें कि इतना ज्यादा कभी कभी इतना ज्यादा कोडिफिकेशन भी किसी कंट्री के लीगल सिस्टम को निगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, जो कि इंडिया में आजकल हो रहा है। सो इस तरह की चीजों के कारण हमें आज सफर करना पड़ रहा है वो सभी कंट्रीज। हेलो यस प्लीज। मैम, Yes. इसमें केस लॉ है। हेलो मैम, कैन Yes, यू हियर please. मी? मैम, इसमें Yes, केस yes, लॉ है please लता सिंह बताइए। वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मैम, इन दिस Yes. केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट right to choose our own life partner is a fundamental right according to Article 21 of Indian Constitution. Yes, 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 yes. Yes. आपने एक केस का नाम है, मैं एक और केस का नाम बताती हूँ। केस का नाम है शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू चूज अवर लाइफ पार्टनर इज फंडामेंटल राइट। ये भी पिटिशनर ने वो सारे केस यूज कर। मैम क्या हुआ, चुप हो गए आप? जुडिशरी ने बोल दिया है कि यस। यस प्लीज। मैम आप एक्चुअली चुप हो गए थे, दोबारा से बताइए प्लीज जो बता रहे थे।
आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया होगा ना आपके उस साइड पे। ओके, हम बात कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने बोला कि केस है लता सिंह वाला, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि राइट टू चूज आवर लाइफ पार्टनर इज अ फंडामेंटल राइट. So there is a one more case in this reference also. The name of case is Shakti Vahini versus Union of India. In this case also, Supreme Court held that right to choose our life partner is a fundamental right in this country. So जब और यही पार्ट आर्टिकल 21 का भी है, डिग्निटी तभी मेंटेन रहेगी जब आप अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज कर पाए, अब वो चाहे सेम सेक्स का हो चाहे अपोजिट सेक्स का हो. इस तरह के कंटेंशंस पिटिशनर रख रहा है, ऑब्वियस सी बात है. सो जैसा कि मैंने आपको वेबिनार के स्टार्टिंग में ही बोला कि देयर इज अ ह्यूज हिस्ट्री ऑफ वेरियस केसेस जो कि माहौल क्रिएट कर रहे थे कुछ सालों से कि यस अब होगा सेम सेक्स मैरिज वैलिड, अब होगा सेम सेक्स मैरिज वैलिड. तो वो सारी चीजें हमने उन केसेस के बारे में हमने डिस्कशन किया. एक से भी आज अभी एक केस का नाम हमने बताया. सो नाउ इट इज कॉल्ड अ हेल्दी डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक. सो अभी तो मेरे I ख्याल hope से अभी तो ये एक्ट बना भी नहीं प्रॉपर, वैसे भी तो खाली सिर्फ बातों बातों में और नेट पे है खाली, अभी एक्ट बना भी नहीं है ये। नहीं, अभी तो इसके बारे पे कुछ भी डिस्कशन है, कोई चीज हाँ नहीं है. अभी तो ये वाला एक्ट आया ही नहीं है, मतलब कि अभी तो अमेंड ही नहीं हुआ ना बना, मतलब अभी तो इसका वही नहीं हुआ, बेस ही नहीं रेडी है, सिर्फ खाली अब बातों में है और इंटरनेट पे है जस्ट बस। Yes. So if you have anybody any doubt, so you can raise your hand. Otherwise, not. We can end the session, right? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे लाइफ के अंदर वेबिनार्स करते रहें और मूट कोर्ट्स वगैरह भी करें? बोल के बताएंगे प्लीज एक बार। हाँ, हम चाहते हैं. ओके Yes, sir. Sir, we also, sir. Always welcome. We also. ओके जी, थैंक यू। Me और too. ओके मैम। Here also. कोई मी 3, कोई मी 4, कोई और? अश्विन जी तो झरना ही चला रहे हैं बस। मैम हम एक काम करते हैं आगे ना, लाइफ के अंदर वेबिनार्स भी और करते हैं, ठीक है फाइन। और मेन थिंग इज दैट कि सभी लोग मोस्टली अग्री हैं कि हम लोग वो भी करें, मूड कोर्ट्स वगैरह भी, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि बाय वेबिनार करने के, मतलब जूम के थ्रू करने के, हम लोग अगर प्रैक्टिकल करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्या राय है? जैसे दिल्ली में हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लाइक प्लेसेस में। आपके सजेशंस प्लीज। कामरा जी, हाँ कामरा जी, जी, मिस्टर अश्विन प्लीज म्यूट योर माइक, मिस्टर अश्विन एंड एक टॉपिक यस था वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम जी कोर्ट वाला. जी 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 वो टॉपिक में अगर वेबिनार हो सकते हैं जी तो अच्छा रहेगा बिल्कुल सबके लिए. बिल्कुल करवा देंगे सर, डोंट वरी। अभी तक देखो, अभी मेरा 28 का वेबिनार अरेंज हुआ पड़ा ऑलरेडी, आगे 4 डेट का भी फिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट जो संडे है तब देखते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मैं जरूर देखूंगा इस बारे में, ठीक है, फिर करवाता हूँ, पक्की बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई Hello. किसी और की गाइडेंस, हेलो हाय, किसी और की क्वेरी गाइडेंस बताइए प्लीज। Sir, हाँ जी सर। excuse me. Sir, Hindu marriage at 1955 सेम सेक्स मैरिज के बारे में बिल्कुल साइलेंट है, उसमें कहीं पर भी सेम सेक्स मैरिज का उल्लेख नहीं किया गया है. उसमें सिर्फ दो हिंदू फैमिली या दो हिंदू कपल्स के बीच में बात किया गया स्पाउस के बारे में. कहीं पर भी सेम सेक्स मैरिज का उल्लेख नहीं किया गया है. Yes, मैम नहीं किया गया है सर, हमने ये कहा था आपको नहीं कि किया गया है. फुल फ्लैज वे से नहीं किया गया कहीं भी, बस जस्ट यस नॉर्मल सर. से एक बात कही गई है वहां पे, वो सेक्शन 5 में बता रहे थे मैम, आई थिंक सुना। यस सर. Yes. हमने भी यही अगेन बोला मैं था। दोबारा क्लियर आई थिंक मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा. पिटिशनर साइड का ये व्यू है कि जब सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का ये कह रहा है कि किन्हीं भी दो हिंदुओं में शादी हो सकती है, वो ये कह ही नहीं रहा है कि देयर शुड बी अ नीड ऑफ टू अपोजिट सेक्स फॉर मैरिज. तो
हम सेम सेक्स मैरिज को अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हम सेम सेक्स मैरिज कर लेते हैं तो वो मैरिज वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट तो उस पर साइलेंट है ना। यस, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कहीं भी सेम सेक्स मैरिज नहीं लिखा हुआ, कहीं भी कोई वर्ड ऐसा मेंशन नहीं है। बट पिटिशनर का ये मेरा व्यू नहीं है। मैंने आज आपको जितने भी बनाए, जो भी अंदर को भी कंटेंशन बताया, वो सारे ही केस का जो केस वहां चल रहा है, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, उन्हीं के ही वो जस्ट है जो आज आपको पता लगा है। सो बेसिकली पिटिशनर का ये व्यू है कि जब पर्सनल लॉज ही साइलेंट है, कि पर्सनल लॉज ना तो अलाउ कर रहे हैं ना डिसअलाउ कर रहे हैं, ठीक है, तो तब सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने में दिक्कत क्या है? तो जब इस तरह की चीजें जब जब जहाँ मुस्लिम मैरिज एक्ट करने की देयर कैन बी टू मुस्लिम, वहां भी दो अपोजिट सेक्स की बात नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी लिखा गया है कि दो हिंदूज, वहां भी दो अपोजिट सेक्स की बात नहीं हो रही है। तो अब सेम सेक्स मैरिज अगर कोई पर्सन कर लेता है तो वो क्यों हिंदू मैरिज एक्ट से डील नहीं हो रहा, वो क्यों मुस्लिम मैरिज एक्ट से डील नहीं हो रहा? हाँ, देयर आर सम इश्यूज की हम डील नहीं करेंगे इस एक्ट से, क्योंकि यहाँ पे प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन का ऑब्जेक्टिव आ जाता है, जो कि सेम सेक्स मैरिज कभी भी फुलफिल नहीं कर सकती, राइट? सो अगेन इसलिए डिबेटेबल टॉपिक है, इसलिए मैं कहा कि सेम सेक्स मैरिज इज डिबेटेबल टॉपिक। इज इट अ ह्यूमन राइट और इज इट कल्चरल इशू? आज हम लोग बैठ के डिस्कशन नहीं कर सकते कि ये ह्यूमन राइट है, कल्चरल इशू है। उसकी जिम्मेदारी हमने सुप्रीम कोर्ट को दी है, राइट? सो वेट एंड वॉच की क्या होता है। सो सब आई होप अगेन इस वेबिनार में कुछ लोग होंगे ऐसे जो सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में होंगे, कुछ लोग होंगे जो सेम सेक्स मैरिज को के अपोजिशन में होंगे, जो अलाउ नहीं कर रहे हो, राइट? सबका एक अपना अपना ओपिनियन होगा, मेरा भी खुद का एक अपना ओपिनियन होगा, राइट? अगेन हमारे पास अगेन हमें आजादी है अपना एक पर्सनल ओपिनियन क्रिएट करने का इस टॉपिक पे, बट देर इज अ लीगल सिस्टम, देर इज सम व्यूज। हम लॉ स्टूडेंट है, एज रोस्को पाउंड स्टेटेड, एवरी लीगल पर्सन इज अ लॉ स्टूडेंट इज अ सोशल इंजीनियर। सो थोड़ा न्यूट्रल वे में सोचना पड़ेगा, थोड़ा जूरिस्प्रूडेंशियल वे में सोचना पड़ेगा, थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में समझना पड़ेगा, अगर हमें एक न्यूट्रल और एक अच्छा लीगल पर्सन बनना है या फिर इसी प्रोफेशन के अंदर आगे गो थ्रू करना है तो। सो आई होप मैम अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यस, बताइए। मैम you have given your suggestion, you have given your statement that lawyers are the social engineers. Ma'am, I am satisfied that your statement, which has been given by Dean Roscoe Pound, who is a sociological sociological is मैम वो है, जूरिस्ट है वो। लेकिन मैम इससे मैम जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, द डॉक्ट्रिन ऑफ नेशनल जस्टिस, मैम उसके हम खिलाफ ही तो जा रहे हैं मैम। Okay, मैम कहीं ना now it कहीं is हम एक a interesting topic. Yes. मैम बैरिकेड भी तो अगर कहीं हम ना बात कहीं ला रहे करते हैं। हैं ओके, सो हम बात करते हैं मॉडर्न नेचुरल लॉ थ्योरी की। हम सब हमें पता है ह्यूमन राइट इज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी। आप इस चीज को मानते हैं, है ना? ह्यूमन Absolutely. राइट इज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी। आप इस चीज को तो मानते ही होंगे, है ना? नहीं जी मानते जी हैं तो यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर जाके आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, जहाँ पे नेचुरल थ्योरी और ह्यूमन राइट के बीच का जो कनेक्शन है वो बताया गया है। हम सब जानते हैं ह्यूमन राइट इज अ रिजल्ट या फंडामेंटल राइट इज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी। और जब यूनाइटेड नेशंस ने 1940 के अंदर ही ये राइट टू मैरिज का राइट सभी लोगों को दे दिया, आप किसी भी कंट्री में रहते हैं और आपकी कंट्री यूडीएचआर के एक डॉक्यूमेंट को साइन कर रही है, तो अब उसके ऊपर बर्डन है कि वो सभी 30 के 30 ह्यूमन राइट्स को अपनी कंट्रीज के अंदर एप्लीकेबल कराए, और इंडिया भी उनमें से एक है। तो अब इस जहाँ पे हम मॉडर्न एंशिएंट नेचुरल थ्योरी या मिडिवल नेचुरल थ्योरी के अंदर सेम सेक्स मैरिज को डिनाई किया गया है, तो यहाँ पे मोरालिटी की बात की गई है सर, राइट? बट मॉडर्न नेचुरल लॉ थ्योरी जिसका रिजल्ट अपने आप में एक ह्यूमन राइट है, यूडीएचआर का डॉक्यूमेंट है, वो तो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर रहा है ना? सो अगेन देयर आर सम टेक्निकल पॉइंट और देयर आर सम लॉजिक्स, है ना, जहाँ पे एक डिबेट, आई थिंक हम एक डिबेट कंपटीशन भी इस पे ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, राइट? सो बिल्कुल कराएंगे, एक चीज बिल्कुल है तो जेन्युइन बात कहिए, कराते हैं। और ये हम कराएंगे सुनो, ये हम कराएंगे सिर्फ उसमें ऑडिटोरियम में कराएंगे, दिल्ली में।
या चंडीगढ़ में, राइट। ताकि सभी गेट टू So- ताकि सभी गेट टुगेदर भी कर सकें, है ना, और सभी अच्छे से सब एक दूसरे को जान भी पाएंगे, है ना, और प्लस एक मीटिंग होती है चलो अलग से, वो भी हो पाएगी, है ना Yes, सबकी। yes. तो मैं चाहता हूँ ये सब हम लोग करेंगे दिल्ली में, ऑडिटोरियम बुक करके करेंगे। सभी क्या कहते हो भाई, कि गाइस ये बताओ। सर आई एम एग्री विथ यू। ओके, जो भी लोग चाहते हैं हम लोग करें, मुझे पर्सनली एक बार हाई कर देना, ठीक है सर, हम ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं एक सभी का अलग से ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, ताकि पता लग जाएगा हमें कि हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और फिर जो आगे नेक्स्ट वेबिनार होते रहेंगे उसमें हम पूछते रहेंगे बात ये वाली, जो बच्चे ऐड ऑन होना चाहेंगे उनको हम ऐड ऑन कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। आई होप सभी को मेरी लैंग्वेज समझ आ गई होगी। थैंक यू संजय जी। भाई कुछ बोल लो सभी यार, मैं दीवार से Thank you बात very नहीं much, sir. थैंक यू वेरी मच Yes, मैम। sir. दीवार से बात नहीं करता यार, तुम्हारे से कर रहा हूँ। एक बात और, मैंने अपनी एक नई टी शर्ट लॉन्च की है विद एडवोकेट लोगो के साथ, जैसे लोगो ये लगा हुआ है ना मेरा, शो हो रहा है सभी को। एडवोकेट लोगो के साथ टी शर्ट लॉन्च किया मैंने, ब्लैक एंड वाइट कलर, ठीक है जी। ये मेरा माल कल तक रेडी होके आ जाएगा, तो जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, और जिसको भी लॉ बुक्स मंगानी हो वो भी मंगवा सकते हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ टी शर्ट, थैंक यू मैम। आपने यूज कब किया है पहले ये बताओ, मुझसे तो ली नहीं आपने। मैंने तो दी भी नहीं आपको टी शर्ट, तो कहाँ से कह रहे हैं पुअर क्वालिटी ऑफ टी शर्ट। कमाल है। एनीवेज, सबका अपना अपना टेस्ट होता है ना। शौर्य जी स्माइल अच्छी है आपकी, थोड़ा बोल लोगे तो कुछ जाएगा थोड़ा ना। थैंक यू सर। कुछ बोल लोगे जाएगा नहीं, वैसे आपस में भाई लोग हैं सभी यार, कोई चक्कर नहीं है। तो उसके बाद बुक्स वगैरह भी लेनी हो किसी को, बुक्स भी ले सकते हैं मेरे से डिस्काउंट प्राइस पे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लाइब्रेरी भी मिल जाएगी, लॉ बुक्स मिल जाएंगी, और मास्क मिल जाएंगे एडवोकेट लोगो वाले, कीरिंग मिल जाएंगे, स्टिकर्स मिल जाएंगे एडवोकेट वाले, और कोट वगैरह चाहिए हो कोट भी मिल जाएगा, ब्लेजर मिल जाएगा, नेक बैंड मिल जाएंगे, टाई भी मिल जाएगी, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। कुछ मंगवाना हो आप मंगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके जी, तो अभी हम सेशन एंड करते हैं, और वीडियो आप सभी को यूट्यूब पे आ जाएगी, अपलोड आ जाएगी, लिंक आ जाएगा वहां से वीडियो का, यूट्यूब से, ठीक है जी। और सर्टिफिकेट्स आप सबको पहुंच चुके हैं मेल से, और फीडबैक फॉर्म सभी को पहुंच चुका है व्हाट्सएप पे, आप सभी लोग फिल कर दीजिए, ठीक है जी। थैंक यू सभी को, बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद 28 डेट को। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम टू ऑल थैंक ऑफ यू यू, सर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, डराना नहीं है भाई।